greetings once again in the precious and matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आपको फिर से अभिवादन। We are in the covenant series and today we are in part 2. हम वाचा के श्रृंखला में हैं और अभी हम पार्ट 2 दूसरे कदम में जा रहे हैं। In part 2, the topic is bringing the witnesses. और दूसरा कदम में जो शीर्षक है वो है साक्षियों को लाना। The person who is entering the covenant should bring the witnesses for the covenant. जो व्यक्ति वाचा बांधता है उसे अपने साथ साक्षियों को भी लाना जरूरी है। For the action what is taken or whatever has happened, there needs to be a witness. और जो भी उधर काम या कार्य हो रही है उसको देखने के लिए कुछ गवाहों या साक्षियों की जरूरत है। Deuteronomy chapter 19 verse 15. व्यवस्था विवरण 19 उसका 15। One witness shall not rise against a man concerning any iniquity or any sin that he commits. By the mouth of 2 or 3 witnesses the matter shall be established. किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म या पाप के विषय में चाहे उसके पाप कैसा भी क्यों ना हो, एक ही जन की साक्षी न सुनना, परंतु 2 या 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। Deuteronomy was given through Moses by God. अब व्यवस्था विवरण मूसा को दिया गया था परमेश्वर के द्वारा। When it comes to marriage, we know how important it is to have a witness. और विवाह के विषय पर हम देखते हैं कि कितना ही मुख्य है साक्षियों को विवाह के समय में रहना। So now if we are going to go to the court with regard to any marriage or any query with regard to the marriage, the judge will ask first about the witness. Who signed the witness document? यदि हम न्यायालय जाते हैं और हम पूछते हैं या कोई भी समस्या है विवाह के विषय पर, पहली बात जो वो न्यायी पूछते हैं वो यह है कि इस विवाह की साक्षियां कहाँ है। Without the signature of 2 witnesses, the marriage document is invalid. 2 साक्षियों के हस्ताक्षर के बिना ये जो विवाह का डॉक्यूमेंट है वो काम में नहीं आता। Now God gave us 613 commandments. परमेश्वर ने हमें 613 आज्ञा दिया। In Deuteronomy chapter 6 verse 4 God says, व्यवस्था विवरण 6 उसके 4 में परमेश्वर कहते हैं, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. ए इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। And now the commandments which God gave are very firm. और जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दिया था वो एकदम ठोस है। If anyone is guilty of the 613 commandments, यदि कोई दोषी हो जाते हैं ये 613 आज्ञा पालन ना करके, a minimum of 2 witnesses has to be inquired before the judge, proving him guilty. न्यायी के सामने कम से कम 2 साक्षियों की जरूरत है ताकि इसको दोषी ठहराए। If a person has committed a crime which is worth of a death penalty, यदि एक व्यक्ति ऐसा एक गुनाह किया है जिसका दंड मृत्यु दंड है, the witnesses are required to carry out the execution. तो वो साक्षियां ही इसका मृत्यु के दंड के कामों को आगे लेकर जाएंगे। See, now today it doesn't happen like that. देखिए आजकल ऐसा नहीं होता है, Because the person when he is guilty is taken to the jail and they give the punishment. क्योंकि यदि एक व्यक्ति दोषी हो जाता है उसको जेल लेकर जाते हैं और वो खुद दंड दे देते हैं। But what is the setup which God has kept? पर परमेश्वर ने जो सेटअप रखा है वो क्या है? The witnesses has to come साक्षियां को आना जरूरी है and the witness has to say, I saw him doing this crime. और साक्षियों को ये बात कहना है कि मैंने इसको ये गुनाह करते हुए देखा। And they are the person who is going to execute the penalty, death penalty. और वो ही इस आदमी को दंड भी देंगे। Now it is in our mind. See, with 10 commandments we cannot run a nation.
देखिए, केवल 10 आज्ञाओं के साथ हम एक देश को चला नहीं सकते। Now God gave 10 commandments. Many people know that. कई लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया, But to run a nation, 613 commandments are required. पर एक देश को चलाने के लिए 613 आज्ञा की जरूरत है। Much of the times in our mind, what is running means church is different, nation is different. कई बार हमारे मन में क्या चलता है, कलीसिया अलग है और देश अलग है। But God brought the Israelites out as a nation. पर परमेश्वर इस्राएलियों को एक देश के रूप में बाहर निकाल कर लाए। He gave the law under Mount Sinai and told the people to function as a nation. और सीनाई पर्वत के नीचे उन्होंने वो आज्ञाएं दी और कहा कि अभी तुम एक देश के रूप में काम करोगे। Today, the church's biggest collapse is that actually people don't want to understand actually what God said for this nation. और कई कलीसिया में ये गड़बड़ी है, कई लोग जानना नहीं चाहते कि इस देश के लिए परमेश्वर ने क्या ही कहा। Paul is explaining church is nation and nation is church. और पौलुस इस बात को समझा रहे हैं कि देश कलीसिया है, कलीसिया देश है। Now many people don't understand this covenant. कई लोग ये वाचा की बात को समझते ही नहीं, But they keep telling, I am under new covenant, I am under new covenant, like parrot they are saying. और तोतों के समान कहते रहते, मैं तो नया वाचा में हूँ, मैं तो नया वाचा में हूँ। So, but if we ask them, okay, ठीक है, you are under new covenant. Okay, tell me what is new covenant. और यदि हम बोलते हैं, पूछते हैं उनको, ठीक है भाई, तुम तो नए वाचा के आदमी हो, पर बताओ कि वाचा क्या है? नया वाचा क्या है? नया वाचा क्या है? They don't know. उनको मालूम ही नहीं होता। For 90% of the people, it is taught like that. They are repeating the same. 90% लोगों के लिए ऐसा सिखाया गया था, ये भी तोतों के समान बोलते रहते हैं। So they keep saying, we don't have Old Testament, we don't have Old Testament, we are new covenant people. वो ऐसे कहते रहते हैं कि हमारे पास, हम तो पुराने नियम के लोग नहीं है, हमारे लिए पुराना नियम नहीं है क्योंकि हम नए नियम के लोग हैं। Now this is the very big foolish statement. ये एक बहुत बड़ा मूर्खता का वाक्य है। What Paul mentioned in the book of Galatians. गलातियों की पुस्तक में पौलुस क्या कहते हैं? We are going to turn our Bible to the book of Galatians chapter 2. गलातियों उसका 2 अध्याय verse 16 to 20 we are going to read now. 16 से लेकर 20 तक अभी हम पढ़ने वाले हैं। Yes. तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी यीशु मसीह पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मैंने तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। What is Paul telling here? पौलुस इधर क्या कह रहे हैं? The Torah is like headmaster. It is the high. और तोरा मानिए एक हेडमास्टर के समान है, वो ही सबसे उच्च या प्रथम स्थान में है। Now Torah is the one which is leading us to Christ. और तोरा ही हमें मसीह की ओर चलाते आती है। Now because of Torah we understand Christ. तोरा के कारण ही हम मसीह को समझ पाते। Christ himself was following the Torah. मसीह खुद तोरा का पालन कर रहे थे। Whenever we say yes, we have to follow the Torah, means immediately people are only thinking we are talking about circumcision, we are talking about sacrifices. They are thinking like that. और जब कभी भी हम कहते हैं कि हमें तोरा का पालन करना है, तो तुरंत लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ, मुझे खतना पालन करना है, वो बलियों के बारे में कह रहे हैं।
to make people understand about the circumcision of the heart only, God is teaching them physical circumcision. हृदय की खतना को सिखाने के लिए पहले परमेश्वर एक शारीरिक खतना का नमूना रखते हैं। Gentiles have to take the circumcision of the heart. और अन्य जातियों को हृदय का खतना का अनुभव लेना पड़ेगा। Sacrifices which are told in Leviticus all represent whom? और सारी बलियां जो लेवी व्यवस्था में बताई गई है सब किसको दर्शाता है? Jesus Christ. यीशु मसीह को। When Jesus was crucified, the sacrifices were stopped. यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे तो बलि बंद हो चुकी थी। We should not forget that 7 feasts which is told in the book of Leviticus. हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जो 7 पर्व बताई गई है लेवी व्यवस्था के पुस्तक में, All that is given for us to understand Jesus Christ only. सब कुछ मसीह यीशु को समझने के लिए ही हमें दिया गया है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। What does the Bible say? बाइबल क्या कहती है? About the 7 feasts, what does it say? 7 पर्वों के बारे में क्या कहती है बाइबल? Observe the feast. कि इसका अनुशासन करना। Observe the feast means what? ऑब्जर्व द फीस्ट का मतलब क्या है? अनुशासन करना, इसका मतलब क्या है? Now you see, okay, I have something in my hand. Now I am showing you this. देखिए मेरे हाथ में ये है। What is this? ये क्या है? Earphone. ईयरफोन्स। Okay, now earphone we see two. I am observing this earphone. मैं इस ईयरफोन्स को ध्यान से देख रहा हूँ। It is red in color. लाल रंग का है। Now it has 2 wires here. यहाँ पर 2 वायर्स दी गई है। And there is something like a ear plug here, which I think I can put in the ears. यहाँ पर ईयर प्लग दिया गया है ताकि मैं कानों में लगा सकूं। And there is a small switch here. I think I can adjust some volume. और यहाँ पर छोटा सा स्विच है जिससे मैं वॉल्यूम को एडजस्ट कर पाऊंगा। And there is something written here. और यहाँ पर कुछ लिखा गया है। I can't read that. मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा Now हूँ। these 2 wires are connecting to 1 wire. और ये 2 वायर जो है एक वायर के साथ जुड़ रही है। And this has a pin here. और यहाँ पर एक पिन है। I think I am supposed to attach this with the cell phone or something else. शायद मुझे सेल फोन या किसी और डिवाइस से इसको अटैच करना पड़ेगा। What did I do now? क्या किया मैंने? I observed. मैं इसको ध्यान से देख रहा था। Clear? You समझ understand? गए? समझ गए आप? I observed. मैं इसको ध्यान से देख रहा था। What is God telling? परमेश्वर क्या कह रहे थे? Observe the feast. पर्वों को तुम माना करना या ध्यान से देखना। What does it mean? Observe the feast means. पर्वों को मानना या ध्यान से देखना, इसका अर्थ क्या है? I am observing Passover. मैं फसह का पर्व को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। I am observing. मैं ध्यान से देख रहा हूँ। I am observing. मैं देख रहा हूँ। And I find out something. और मैं उधर कुछ पा रहा हूँ। I find out that it talks about the death of our Lord Jesus Christ. और मुझे समझ आता है कि वो पर्व हमारे प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में बोल रही है। Hallelujah. हालेलुया। Do you understand what is observing? क्या आप समझ पा रहे हैं कि ऑब्जर्विंग का मतलब क्या है? I observe unleavened bread. और मैं ये अख़मीरी रोटी का पर्व को मानता हूँ। And I understood that it talks about the burial of our Lord Jesus Christ. और मैं समझा कि वो यीशु मसीह के गाड़े जाने के विषय पर बताती है। I observe about the first fruits. पहला उपज का पर्व मैंने मनाया। And I understand it talks about the resurrection of our Lord Jesus और Christ. मैं समझा कि हम मेरे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय पर ये बता रही है। I observe the feast of weeks. और सप्ताहों का पर्व मैंने मनाया। And it talks about the coming of Jesus Christ as Holy Spirit. और मैं ध्यान से देखता हूँ पवित्र आत्मा, यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के रूप लेकर आते हैं उसके विषय पर बताई गई है। I observe the feast of trumpets. और
नरसिंहों के उस पर्व को मैं मानता हूँ या ऑब्जर्व करता हूँ, and I understood that it is talking about the second coming of our Messiah. और मैंने समझा कि वो हमारे मसीहा के दूसरे आगमन के विषय पर बता रही है। I observed the day of atonement, प्रायश्चित के दिन को मैंने ध्यान से देखा या मनाया, and I understood it is speaking about the judgment day. और मैं समझा कि उस न्याय के दिन के विषय पर ये बात करती है। I observed the Feast of Tabernacles, झोपड़ियों के पर्व को मैंने मनाया या ध्यान से देखा, and I understood it is talking about the 1000-year rule of our Lord Jesus Christ. और मैं समझा कि वो मेरे मसीह यीशु के 1000 वर्ष शासन के विषय पर कहती है। Now when we say talk about Old Testament, means people are thinking it is only talking about circumcision, sacrifices. Apart from that, there's nothing in Old Testament. People are thinking like that. और लोग जब भी हम कहते हैं पुराने नियम पर, तो वो ऐसे सोचते हैं कि केवल खतना, बलि और पर्वों के बारे में बताई गई है, उसके अलावा कुछ नहीं है पुराने नियम में, ऐसे लोग सोचते हैं। Even today, circumcision is there. आज तक खतना लागू है। We must be circumcising our heart through the sword of the word. और परमेश्वर के वचन के उस तलवार के द्वारा हमें अपने आप का खतना करना है। Sacrifices are there even today. और आज भी बलियां हैं। And even today you must confess, Jesus Christ is my sacrifice. और आज तक हमें अंगीकार करना है कि यीशु मसीह ही मेरे बलि है। How many people know that the communion came from Passover? और कितने लोग जानते हैं कि प्रभु भोज फसह के पर्व से ही आया है। Without Passover, how you will understand communion, Baba? और फसह के पर्व के बिना हम कैसे उस प्रभु भोज को समझ सकते हैं भाई? There is nothing more wrong than saying everything is over, Old Testament is over. There cannot be anything more wrong than और that. पुराना नियम खत्म हो चुका है, इस गलत वाक्य से ज्यादा बढ़कर और कोई गलत वाक्य हो ही नहीं सकती। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, Old Testament is not over. पुराना नियम खत्म नहीं हुआ। We are following it and we should follow it. हम पालन करते आ रहे हैं और हमें करना भी चाहिए। If you go for registration of a document, यदि हम एक डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, we all know that we need to have 2 witnesses. हम सब जानते हैं कि हमारे पास 2 गवाहों की जरूरत है। This is applicable in all nations. ये सारे देशों में लागू है। From where did it come? कहाँ से ये आया? Who is the founder of this bringing 2 witness? ये 2 साक्षियों को लाने का ये बात किसने लाया? It has come from the Bible. ये बाइबल में से ही आई है। If you have violated the law, then witnesses are required. यदि हम व्यवस्था के खिलाफ कुछ करते या कानून के खिलाफ कुछ करते हैं, तो इसको साबित करने के लिए साक्षियों की जरूरत है। John chapter 5 verse 39 says, और यूहन्ना 5 उसका 39 ऐसा कहता है, You search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। The scripture is giving witness of our Lord Jesus Christ. पवित्र शास्त्र हमारे प्रभु यीशु मसीह का गवाही देती है। Can we implement a death penalty without witness? क्या हम साक्षियों के बिना एक मृत्यु दंड को ला सकते हैं? Now in those times, how they do give the death penalty? उन दिनों में कैसे वो मृत्यु दंड देते थे? Now they will take the person who actually has to be punished. They take him to a mountain top. और जिस व्यक्ति को दंड मिलना है, उस व्यक्ति को एक पहाड़ की चोटी में लेकर जाते थे। It is not like everybody take a stone and hit him. It doesn't happen like that. और ऐसा नहीं कि सब लोग पत्थर लेकर उसको पथराव करेंगे। That person is made to kneel down. उसको घुटने टेकने बोलते हैं। So when he is kneeling down, तो जब वो घुटना टेकता है, his hands are taken behind. और उसके हाथ को पीछे बांध देते हैं। The 2 hands are tied. दोनों हाथों को बांध देते हैं। Along with the legs. पैरों के साथ साथ।
So hands, two legs are tied together. और दो हाथ दो पैर को एक ही रस्सी से बांधते हैं। So now this man is in kneeling down position. और ये आदमी जो घुटने टेक कर बैठा है, Now we are seeing this in Acts chapter 7 verse 60. और हम इसको देखते हैं प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसके 60 पद में। Then he knelt down and cried with a loud voice, Lord, do not charge them with this sin. And when he had said this, he fell asleep. फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से उसने पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वो सो गया। So there are witnesses to testify. This is Stephen's death. और वहां पर गवाह थे बताने के लिए कि ये स्टेफनुस का मृत्यु है। So now he is in kneeling down position with hands and legs tied. अभी घुटने टेक कर हाथ पैर उसका बंधा है। When they push him, और जब उसको धक्का देते हैं, his head will directly come and hit on a stone which is there. और उसका सिर एकदम सीधा आके एक पत्थर के ऊपर गिरेगा। With that force itself, he will die. उसी दबाव, उस फोर्स के साथ ये मर जाता है। But even if he has not died, means then they will put a big stone from on top of him, and then he will die. यदि उसके बावजूद उसका जान बच जाता है तो एक बहुत बड़ा पत्थर लेते हैं और उसको उसके ऊपर डाल देते हैं। So in executing the death penalty, witnesses were there. तो मृत्यु का दंड देने के लिए वहां पर गवाह थे। Let us see the death of our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को हम देखते हैं। Turn your Bible to Matthew chapter 26 verse 57 to 62. और निकालेंगे मत्ती 26 उसका 57 से 62। They want to execute the death penalty, but they are not having witness, so they brought false witness. और वो यीशु मसीह को मृत्यु दंड देना चाहते थे, पर वो दे नहीं पाए, इसलिए झूठी साक्षियों को वो लेकर आते हैं। And you see many people coming and telling various statements. और हम देखते हैं कि कई लोग आकर बहुत सारे वाक्य कहते हैं। So can we read the last from verse 60? Can you read? और पद 60 से क्या हम पढ़ सकते हैं? Yes. परंतु बहुत से झूठे गवाहों ने आने पर भी न पाई। अंत में 2 जन आए और कहा, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिनों में बना सकता हूँ। Glory be to God. Now various witnesses are being put against Jesus Christ. और बहुत सारे गवाहों को लेकर आते हैं यीशु मसीह के खिलाफ। Third, we will see about Peter. और तीसरा हम देखेंगे पतरस के विषय पर। Mark chapter 14 verse 30. मत्ती 14 उसका 30। मरकुस 14 उसका 30। Yeah. Jesus said to him, assuredly I say to you that today, even this night, before the rooster crows twice, you will deny me 3 times. See here, Jesus is putting a witness for what he is saying. देखिए, यीशु मसीह एक गवाह को डालते हैं उनके जो शब्द के लिए। Denial of Peter. पतरस का इनकार। And Jesus is putting 2 witnesses, rooster crows twice. और यीशु मसीह यहाँ पर 2 साक्षियों को लाते हैं और कहते हैं बांग 2 बार, मुर्गी के 2 बार बांग देने के पहले। Now read verse 72. पद 72 को हम पढ़ेंगे। Yes. मरकुस 14 उसका 72। Yeah. तब तुरंत दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी। पतरस को वह बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई, मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह इस बात को सोचकर रोने लगा। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, as per Deuteronomy 19:15, और व्यवस्था विवरण 19 उसके 15 के अनुसार 2 witness is required minimum. कम से कम 2 साक्षियों की जरूरत है। So here you see for every incident which is happening, there are witnesses.
और यहाँ पर हम देखते हैं हर एक घटना के लिए यहाँ पर साक्षियां हैं। I am going to give you a few more verses which you can read later. और मैं और भी आपको कुछ पदों को देने वाला हूँ जो आप बाद में पढ़ सकते हैं। Now, please note down प्लीज नोट कीजिए। Matthew chapter 18 verse 16, मत्ती 18 उसका 16, 2 Corinthians 13:1, दूसरा कुरिन्थियों 13 का 1, 1 Timothy 5:19. पहला तिमोथियुस 5 उसका 19। What does all these things say? ये 3 पदों में वचनों में क्या बताई गई है? It talks about Deuteronomy 19:15. व्यवस्था विवरण 19 का 15 ही उधर बताया गया है। Matthew 18:16 says there are witnesses required. और मत्ती 18 का 16 कहते हैं कि साक्षियों की जरूरत है। 2 Corinthians 13:1 says, 1 Timothy 5:19 says that. और दूसरा कुरिन्थियों 13 का 1 ऐसा ही कहता है और पहला तिमोथी 5 उसका 19 भी ऐसा ही कहता है। So what I should say now? तो मुझे अभी क्या कहना है? Do I have the right to say Matthew 18:16 is Old Testament? क्या मेरे पास अधिकार है ये बताने के लिए कि मत्ती 18 का 16 पुराना नियम है? Yes. हाँ, Because the same thing is told. क्योंकि वही बात बताई गई है। 2 Corinthians 13:1 is Old Testament. दूसरा कुरिन्थियों 13 का 1 पुराना नियम है। 1 Timothy 5:19 is Old Testament. दूसरा तिमोथी 5 उसका 19 पुराना नियम है। So now if Paul has told in Corinthians and Timothy, और यदि पौलुस कुरिन्थ और तिमोथी के पुस्तक में बताए हैं, how can Paul say Old Testament is over or commandments is over? How he can say? कैसे कह सकते हैं कि व्यवस्था खत्म हो गई या पुराना नियम खत्म हो गया? Is Paul in double standard? क्या पौलुस दो तरफ खेल रहे हैं? We have to understand our understanding of what Paul told is wrong. हमें ये समझना है कि पौलुस का पत्र में का हमें ठीक से समझ नहीं आया। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Baptism is a sign of the covenant. बपतिस्मा वाचा का चिन्ह है। We cannot accept a baptism being given without any witness. और गवाहों के बिना कोई भी बपतिस्मा हम स्वीकार नहीं कर सकते। Minimum 2 or 3 witnesses should be there. कम से कम 2 या 3 गवाहों की जरूरत है उधर। Before the baptism, the pastor will definitely ask question. और बपतिस्मा के पहले जरूर पास्टर प्रश्न पूछते हैं। Do you believe in the Lord Jesus Christ? क्या तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? Do you believe that he was crucified on the cross for your sins? क्या तुम विश्वास करते तुम्हारे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए Do you गए have the थे? confirmation that he has forgiven your sins? क्या तुम्हें निश्चितता है कि उन्होंने तुम्हारे पापों को क्षमा कर Do दिया? you believe he resurrected and he has gone to heaven to prepare a place for you and me? क्या तुम विश्वास करते हो कि वो उनका पुनरुत्थान हुआ है और तुम्हारे लिए और मेरे लिए जगह तैयार करने गए हैं? What the person who is going to take baptism should say? जो आदमी बपतिस्मा ले रहा है उसका जवाब क्या होना चाहिए? Yes, 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 he should say. उससे कहना है हाँ हाँ हाँ, उसे कहना है। Let us turn our Bible to Matthew chapter 28 verse 19. निकालेंगे मत्ती 28 उसका 19 पद। Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son and Holy Spirit. वहां पर बताया गया है कि पृथ्वी के छोर तक जाओ और सबको चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में तुम बपतिस्मा देना। So a person is baptized तो एक व्यक्ति का बपतिस्मा हो रहा है and then he has to be made as a disciple of Christ. और उसको उसके बाद मसीह का चेला बनना चाहिए। Now let us see what Paul says in Romans chapter 10 verse 9. और अभी हम देखेंगे रोमियो 10 उसका 9 में पौलुस क्या कहते हैं। If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। Confess with lips and heart. मुंह से अंगीकार और हृदय में विश्वास, That is salvation. ये होता है उद्धार। For lips, what he has told, और मुंह से अंगीकार के लिए उन्होंने क्या कहा? we are the witness.
हम गवाह हैं। Because when he is taking baptism, we are standing here, he is saying yes, yes, yes. So we are the witness. तो क्योंकि बपतिस्मा लेते वक्त वो बपतिस्मा ले रहा है, हम यहाँ पर खड़े हैं, वो हाँ हाँ जब कहता है हम सुनते हैं तो हम गवाह हैं। But for the heart, who is the witness? पर हृदय के लिए कौन गवाह है? Say in the mouth and believe in the heart, no? मुंह से अंगीकार करो और हृदय में विश्वास करो। Whether if I ask you whether you know that he believed in the heart means heart we don't know, but he is saying. That is what you will say. और यदि हम पूछते हैं क्या तुम निश्चय जानते हो कि उसने हृदय में विश्वास किया, हम कहेंगे कि भाई हृदय की बात तो मालूम नहीं है पर मुंह से उसने कह दिया। Correct. सही है। So for heart we need a witness. अभी हृदय के विश्वास के लिए हमें गवाहों की जरूरत है। Which witness is that? कौन से गवाह है वो? The Father, the Son and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। They are the witness. वो ही गवाह बन गए। Now normally when we are giving baptism, नॉर्मली जब हम बपतिस्मा देते हैं, what do we say? In the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Like that we give baptism, na? हम ऐसे कहते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। Actually, it is in the presence of the Father, presence of the Son and presence of the Holy Spirit. पर वास्तविकता में वो है पिता के उपस्थिति में, यीशु मसीह के उपस्थिति में और पवित्र आत्मा के उपस्थिति में। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So for entering into a covenant, we see witnesses, Father, Son, Holy Spirit, and also the witnesses who are standing there. और वाचा बांधते वक्त या वाचा के प्रवेश करने के समय हम देखते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा भी एक गवाह के समान खड़े हैं और हम लोग भी गवाह के समान खड़े हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us turn our Bible to John chapter 19 verse 30 to 34. यूहन्ना 19 उसका 30 से लेकर 34 पद तक हम पढ़ेंगे। Yes. जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुककर प्राण त्याग दिया, इसलिए कि वह तैयारी का दिन था। यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उसकी टांगें तोड़ दी जाए और वे उतरे जाए, ताकि शब्द के दिन वे क्रूसों पर न रहे, क्योंकि वह शब्द का दिन बड़ा दिन था। अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे को भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु मसीह के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगें न तोड़ी, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसके पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। Now Jesus' side is being pierced. अभी यीशु मसीह के पंजर में उसने बर्छे बेधा। Blood and water is coming. और उस समय लहू और पानी निकला। See two witness. फिर से देखिए दो गवाह है। Now when blood and water will come? कब लहू और पानी निकलता है? From a human body, when blood and water will come? मनुष्य के शरीर में से कब लहू और पानी निकलता है? When a mother is giving a birth of a child, that time only blood and water will come. जब एक माँ एक बच्चे को जनती है, तभी लहू पानी एक साथ आता है। Now blood and water is coming for our Lord Jesus Christ. अभी हमारे प्रभु यीशु मसीह के देह में से पानी और लहू बह रही है। Which means something is happening, something is being born. इसका मतलब कुछ तो जन्म ले रहा है। And what is that? और वो क्या है? That is the church. वो है कलीसिया। That is you and me. वो है आप और हम। Now when we come into the church, अभी जब हम कलीसिया में आते हैं,
Now, how we say brother, sister, praise the Lord, brother, praise the Lord, sister, how we say? हम कैसे कह पा रहे हैं कि प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, भाई बहन एक दूसरे को कैसे बोल सकते हैं? I can say brother, sister if they have come from the same womb. यदि एक ही कोख में से आए हैं उन्हीं को हम भाई बहन कह सकते हैं। But when I go to the church, I am saying brother, sister means we all are born from the same womb, and that is through Jesus Christ we are born on the cross. और जब आप और हम जन्म लेते एक ही कोख में से हम निकल रहे हैं, और वो उस समय हमने जन्म लिया जब क्रूस पे यीशु मसीह के देह से पानी और लहू बहा। Now 1 John chapter 5, if you could please take. और यदि हम निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय verse 6 to 12. उसका 6 से 12। Is it possible we can read that? Yes. 1 John chapter 5 verse 6 to 12. पहला यूहन्ना 5 उसका 6 से 12। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और वह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है और उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। The death of our Lord Jesus Christ is our covenant. और यीशु मसीह का लहू जो है, मृत्यु जो है, वो हमारा वाचा है। Now you know Jacob and his children went to Egypt. हम जानते हैं कि याकूब और उसके बच्चे मिस्र को गए, and many children were born to them. और उसके द्वारा और वहां जाकर बहुत संतान उनका उत्पन्न हुआ। But when they came out, once again they were born again. और पर जब वो निकल के आए उनका नए सिरे से एक जन्म हुआ। Blood was put on the doorpost. लहू उनके द्वार पर डाली गई थी। And they came through the Red Sea. और लाल समुद्र में से होकर आए। There is a rebirth which is taking place. एक नए सिरे से लोग जन्म ले रहे थे। That is the covenant. और वो है वाचा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Who are you and me? आप और हम कौन हैं? We are the covenant community. हम वाचा के समुदाय हैं। Luke chapter 24 verse 45 to 48 says, और लूक 24 उसका 45 से 48 ऐसा कहता है, Jesus Christ died, buried and resurrected. यीशु मसीह मारे गए थे, गाड़े गए थे और जी उठे। Verse 48 says, वर्स 48 यो कहता है, and you are witnesses of these things. We are the witness. तुम इन सब बातों के गवाह हो, हम ही वो गवाह हैं। How many of you are ready to say, I am the witness for the death, burial and resurrection? कितने लोग ये कहने के लिए तैयार हैं कि हम ही यीशु मसीह के मृत्यु, उनके गाड़े जाने और पुनरुत्थान के गवाह हैं? Hallelujah. हालेलुया। We are the witness. हम ही वो गवाह हैं। And we have entered into the covenant. और हम वाचा में प्रवेश कर चुके हैं। And this is the big blessing which I am in the covenant of the Lord. और ये एक बहुत बड़ी आशीष है कि हम उस वाचा में पाए जाते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now let us, I am going to give you some verses so that you can read it later on for your meditation, personal meditation. मैं चाहता हूँ कि मैं और भी कुछ वचन आपको दूं ताकि आप अपने व्यक्तिगत मनन के समय उसको उपयोग करें। Please note down these verses. इन पदों को आप नोट कर लीजिएगा। Acts chapter 1 verse 8. प्रेरितों के काम 1 का 8।
Acts chapter 2 verse 32. प्रेरितों का काम 2 उसका 32, Acts chapter 3 verse 15. प्रेरितों के काम 3 का 15, Acts chapter 5 verse 32. प्रेरितों का काम 5 का 32, 1 Corinthians chapter 15. पहला कुरिन्थियों 15 उसका 15, Exodus chapter 20 verse 16. निर्गमन 20 का 16। So many verses I have given you, my dear children of God, with regard to all the witnesses. और इतने सारे वचनों को मैंने दिया है मेरे प्रियो वचन के गवाहों के विषय पर। Now God says minimum there needs to be 2 witnesses. परमेश्वर कहते हैं कम से कम 2 गवाहों की जरूरत है। Who are those 2 witnesses? वो 2 गवाह कौन है? कौन है? Husband and wife. पति और पत्नी, The family. परिवार। The reason for uniting a man and woman in marriage is to keep them as witness. और पुरुष को और स्त्री को परिवार के वाचा में बांधने का कारण है कि वो एक गवाह बने। Each one of us is the witness of the covenant. हम में से हर एक इस वाचा का गवाह है। We are just going to read one verse and finish. एक ही पद को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। Matthew chapter 18 verse 18 to 20. मत्ती 18 उसका 18 से 20। Yeah. मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगो तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। What is God saying? परमेश्वर क्या कहते हैं? Let 2 people agree on a matter. और जब 2 लोग एक बात में सहमति होते हैं, When they agree on a matter, I am there. और जब सहमत होते हैं तो मैं उधर आ जाता हूँ। 2 or 3 people be as a witness for the covenant. 2 या 3 लोग इस वाचा का साक्षी जब बनते हैं। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।